महत्वपूर्ण भूमिका न निभाएं। इसके अलावा अपने लगाव को निष्क्रियता के रूप में न लें। A very warm good evening and heartiest welcome to all the dear parents. We are immensely pleased to have each one of you amidst us as we come together to celebrate the birth of Lord Krishna at Aditi Silverbell School. Today, I stand before you to talk about a festival that holds a special place in our hearts, Janmashtami. Janmashtami is celebrated with immense joy across the country to mark the birth of Lord Krishna, the 8th incarnation of Lord Vishnu. Our hearts are truly filled with gratitude and honor as we are graced by the presence of our esteemed chief guest, Mrs. Pragati Kumari, today. We extend a warm and heartfelt welcome to her, and I invite you all to show your appreciation with resounding round of applause. I take the pride in introducing our distinguished chief guest. Mrs. Pragati Kumari received her initial education at Mayo College Girls' School, Ajmer. Hence hold a strong educational background. She is a renowned national shooter who achieved a remarkable 15th rank in rifle and trap shooting for India in year 2017. She has also represented the Rajasthan cricket team as its captain. Her achievements include numerous medals in swimming, and she is actively engaged in organic farming and wildlife conservation, contributing to the welfare of society. Currently, she is serving the public as Pradhan of Belara Tehsil and has achieved remarkable name in the city. Her dedication to excellence has been a source of inspiration to many and continues to positively influence numerous lives. Her presence here today underscores her deep appreciation for our rich cultural and spiritual heritage. I kindly request you all to join me in offering a heartfelt round of applause in recognition of her accomplishments. Before we proceed with our festivities, I would like to invite Ma'am Aditi and Ma'am Kiran and our honorable chief guest to honor us by lighting the ceremonial lamp. To request Ma'am Aditi to please come up on stage to motivate our performers before they spring the opening performance. Good evening to one and all present here. Today is a very special day for me for two reasons. One, we are celebrating the birth of Lord Krishna. We are celebrating Janmashtami. And second, it is Teachers' Day today. Coincidences like that we haven't decided the date as such, but then the logistics were not working somehow, and we have to choose September 5 as the celebration of Janmashtami. Now I would not like to take so much of time. I just want to say a few words. Krishnam Vande Jagat Guru. कृष्ण ही इस जगत के सबसे बड़े गुरु हैं, और ये एक संयोग ही रहा है कि आज के दिन हमारा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हो रहा है और आज के दिन ही हमारा टीचर्स डे है। कृष्ण ने हमें बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत कुछ सिखाया, तो आज मैं अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए ऐसे 4 गुरुओं को आपके सामने मैं नाम लेना चाहूँगी जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ में सक्सेसफुल बनाया। नंबर 1 इज़ माई पेरेंट्स एंड माई इन-लॉज, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मुझे आगे बढ़ने में मदद करी, जिन्होंने मेरा बेस डेवलप करा। सेकेंड बीइंग माई गुरुज, माई टीचर्स, एंड लकीली शी इज़ प्रेजेंट हियर, मैम चित्रलेखा। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट
Please give a big round of applause to her. Thank you so much, ma'am, for gracing the function. Thank you so much. Third are my teachers. They have taught me each and every day. I have learned composedness, I have learned patience, I have learned resilience, I have learned so many qualities from them, because they are the one who are showing up every day with a smiling face, who are going through so many ups and downs, but still, you know, they are hitting the floor every day, waking up with a smile and coming here and of course delivering the best of education to your children. And fourth being my children, मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे, जिनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ हर दिन. तो ये जो कोट बहुत पहले बोला गया था, अ चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ये ऐसे ही नहीं बोला गया था. एक बच्चे से हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं, बार बार सीखते हैं. और यही चीज़ मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ है सेल्फलेस लव. द वे दे लव अस, the way they shower their love, no matter how much ever we scold them, no matter हम लोग कितना भी उन्हें कुछ कह दें, but they come again and they hug us with the same warmth. जिस तरीके से युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने चैरिटियर बनकर अर्जुन को रास्ता दिखाया था, because श्री कृष्ण possess all the worldly wisdom and knowledge. जिस तरीके से उन्होंने गाइड किया था, ठीक उसी तरीके से मेरी लाइफ में इन 4 गुरुओं ने मुझे हर मौके पे, हर जगह मुझे इस तरीके से गाइड किया है, which is why I am able to stand here today and which is why I am able to contribute some good to the society. With this note, I welcome you all and thank you so much, Ma'am Pragati, for marking your presence here today. I know it's been a very hectic day for you since you were traveling so long, but still, thank you so much from the bottom of my heart. The children of Aditi Silverbell School will surely be really happy because they are very excited that who is coming outside. So now with this note, we'll bring the opening performance as I hand over my mic to my little anchors. Thank you so much. ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. प्रथम, तुम यह श्लोक क्यों सुना रहे हो और इस श्लोक का क्या अर्थ है? वेदिका, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब इस धरती पर अन्याय का घड़ा भर जाएगा और धर्म का पतन होगा, तब तब मैं इस धरती पर अधर्म के विनाश के लिए इस धरती पर जन्म लूंगा. जय श्री कृष्णा. मैं प्रद्युम्न और माँ वेदिका, हम दोनों इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी का आदित्य सिल्वरबेल स्कूल में स्वागत करते हैं. अच्छा प्रद्युम्न, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस मना रहे हैं. क्या कोई है जो हमें बता सके कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? अच्छा, तो मैं ही बताती हूँ. भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था. वेदिका, हमारी संस्कृति में श्लोकों को बहुत महत्व दिया गया है. मेरी माँ कहती है कि हर शुभ काम की शुरुआत हरि नाम से करने से सब अच्छा होता है. तो आज हम इस पावन अवसर की शुरुआत भी श्लोकों के साथ ही करते हैं. तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष कक्षा पहली के बच्चों द्वारा मंत्रों का उच्चारण. श्रीमद् भगवत गीता के 2वें अध्याय से लिया गया है. इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कह रहे हैं कि तुम्हारा केवल कर्म करने में अधिकार है. इससे प्राप्त होने वाली
में नहीं। तुम स्वयं को अपने कर्मों का फल का कारण मत मानो और साथ ही तुम्हारे कर्म न करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जब जब संसार में पाप और धर्म बढ़ता है अर्थात धर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। धन्यवाद। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रस्तुत श्लोक गीता जी के चतुर्थ अध्याय से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन दुष्टों के नाश, संतों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं इसमें अवतार लेता हूँ। धन्यवाद। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि आत्मा के अमृत का बोध कराते हुए कहते हैं कि आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, उसे आग जला नहीं सकती, उसे जल जला नहीं सकता, उसे वायु सुखा नहीं सकती। धन्यवाद। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। प्रस्तुत श्लोक गीता जी के 18वें अध्याय से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मूड हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित हो जाने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य खुद अपना नाश कर बैठता है। धन्यवाद। अजो अपि सन्निरायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय से लिया गया है। मैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कह रहे, मैं एक अजन्मा तथा कभी न नष्ट होने वाली आत्मा हूँ। मैं इस प्रकृति को संचालित करता हूँ और मैं इस समस्त सृष्टि का स्वामी हूँ तथा और मैं इस योग माया से पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ तथा कोई भी मनुष्य मेरे बनाए नियमों को तोड़ नहीं सकता। धन्यवाद।
बुद्धिनाशा प्रणश्यति अजो अपि सन्न्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामनिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। कार्य हो जाए। अपने बचपन में बहुत नटखट और शरारती थे और उन्होंने अपने बचपन में बहुत से चमत्कार भी किए। हाँ बच्चों, मेरे दादी साहब मुझे हर रोज रात को पौराणिक कहानियाँ सुनाते हैं। मेरा भी बहुत मन होता है कि काश मैं उन सभी को सच में देख पाती, लेकिन कहाँ? अरे अदिति सिल्वर बैग्स के बच्चे हैं तो हर चीज संभव है। चलो मैं तुम्हें कृष्ण की ऐसी ही बाल लीला और चमत्कारी रूप की एक झांकी दिखाता हूँ। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष अदिति सिल्वर बैग्स के बच्चों द्वारा कृष्ण जन्मोत्सव की कहानी। जब जब धर्म को हानि होती है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब सभी मनुष्य के उद्धार के लिए, अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं जन्म लेता हूँ। यह प्रत्येक युग में होता आ रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। कुसंगनत् कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथगामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम्। कुमार्गरत् कुसंगनत् कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथगामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम्। आपकी गागर भर चुकी है कंस। देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वासुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म ही नहीं लेने दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथगामि क्रोध रूप कंस क्रूरतम्। असभ्य अत्याचारी नृप अशिष्टतम अभद्रतम दुरात्मा अनंत दुःखदायी दुष्ट दुर्जनम्। 9 महीने तक अपने भीतर छिपाए रखने के पश्चात 9 महीने तक अपने रक्त पर जीवित रखने के पश्चात क्या हुआ? भैया आते हैं और उसे मेरी गोद से छीन लेते हैं।
और फिर दीवार पर रक्त का एक नया थप्पा पड़ जाता है। वासुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्जवल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और गोकुल में अपने मित्र नंद राय के यहाँ छोड़ आओ। धीरे धीरे श्री कृष्ण बड़े होते गए और उन्होंने कई सारी लीलाएं की। कौसल्या सुप्रज रामपूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यं दैवमान्निकम्। Krishna, 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 Krishna. La 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 la, 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 la 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 la. Krishna, 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 Krishna. Krishna, Krishna. Krishna, 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 Krishna. राधा के संग में आज रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आई पूनम की जानी रात रास रचे कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आज झूमे कैसे देखो राधा। आगरत् कुसंगनत् कुचक्रवत् कुलक्षणं कुटिल कुपंथ कामी क्रोध रूप कंस क्रूर महाविध्वंस है ये कंस है, ये कंस है, ये छल कपट का दंश है।
जय श्री कृष्ण। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर हम सभी आपका दिल से वंदन करते हैं। हम बचपन से ही कृष्ण की अनेकानेक बाल लीलाएं सुनते आ रहे हैं और आज इस पावन अवसर पर उन्हीं की बाल लीलाओं की एक झांकी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये झांकी पसंद आएगी। एक समय की बात है, कृष्ण घर पर एकदम अकेले थे और भूख के मारे उनका बुरा हाल था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैया भी घर पर नहीं है, मैं क्या खाऊं, कहाँ जाऊं? और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी, फल ले लो, अरे फल, ताजे मीठे मीठे स्वादिष्ट फल, फल ले लो। आज तो मेरा एक भी फल नहीं बिका, एक भी बौनी नहीं हुई। लगता है आज मुझे ये फलों की टोकरी इसी तरह घर लेके जानी होगी। फल ले लो, अरे ताजे ताजे मीठे मीठे फल। वृद्धा की आवाज सुनकर श्री कृष्ण घर से दौड़े चले आए। अरे ओ फल वाली, अरे ओ फल वाली, रुको रुको रुको, अरे ये फल कैसे दिए? तुझे फल चाहिए? हाँ, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे ये फल चाहिए। अच्छा, मैं तुझे ये फल दे दूंगी, लेकिन बदले में तू क्या देगा मुझे? बदले में आपको क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए। अच्छा, पैसे तो मेरे पास नहीं है। अच्छा, जाके अंदर से अपनी माँ को बुला ला। मेरी माँ और पापा भी घर पर नहीं है, घर पर कोई भी नहीं है। अच्छा, तो तू मेरे सारे फल ऐसे ही खरीद लेगा? क्या तू बदले में मुझे कुछ भी नहीं देगा? मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। इन फलों के बदले में कुछ तो तुझे अवश्य देना होगा। अच्छा, आप 1 मिनट यहीं रुको। श्री कृष्ण भागे भागे घर के अंदर जाते हैं और इधर उधर कुछ ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक मटकी दिखाई देती है। उस मटकी को खोलते ही उसमें भरा हुआ अनाज वो अपने छोटे छोटे हाथों में उठाकर ठुमक ठुमक चलते हुए घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन चलते चलते कुछ अनाज के दाने उनके हाथों से जमीन पर गिर जाते हैं। कृष्ण फिर भी जैसे तैसे बचे हुए कुछ अनाज के दाने लेकर फल वाली के पास आते हैं। अरे, ये क्या लाए हो? मेरे लिए ये तुम अपनी मुट्ठी में क्या लेकर आए हो? मैं आपके लिए यही ला सका, माफ करना, कुछ दाने बाहर गिर गए। अरे चिंता ना करो, कोई नहीं, मैं तुम्हें एक शर्त पे ये सारे फल दे दूंगी। वो क्या है भला? तू इतना नटखट है, एक बार मेरी गोदी में बैठकर मुझे मैया बोल दे, बस इतनी सी बात, ये लो। और कृष्ण
फटाफट वृद्धा की गोदी में बैठ जाते हैं और प्यार से पुकारते हैं, मैया। वृद्धा का मन प्यार से गदगद हो जाता है और वे कृष्ण को सारे फल दे देती है। वृद्धा अपने सारे फल कृष्ण को दे देती है और वहां से दोनों खुशी खुशी अपने अपने घर लौट जाते हैं। फलों की टोकरी जब वृद्धा घर आकर देखती है तो पाती है कि उसमें बहुत सारे आभूषण हैं। वृद्धा की आंखों में एक नई चमक आ जाती है और उसे सोचते हुए ये बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि ये कृष्ण की ही लीला हो सकती है। वह मन ही मन कृष्ण को याद करती है और उनका धन्यवाद करती है। ये थी कृष्ण की छोटी सी बाल लीला। आशा करते हैं आप सबको ये पसंद आई होगी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कृष्ण जन्माष्टमी के इस वो नित्य के बिना कैसे पूरा होगा? तो आइए देखते हैं कक्षा क्रैप के बच्चों द्वारा कृष्ण को समर्पित एक सुंदर सा नृत्य। दृश्य। इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अरे कैया, कितना मजा आ रहा है ना? यमुना नदी के तट का दृश्य। अरे अरे गैया, कितना मजा आ रहा है ना? और नहाओ।
चलो चलो और नहाओ, ये लो ये लो। अरे 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 ये पानी काला कैसे हो रहा है? अरे ये क्या है? भागो 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 गैया। नंद बाबा, नंद बाबा। अरे अरे गोपी क्या हुआ? नंद बाबा, वो यमुना नदी में मैंने एक विशालकाय सर्प देखा है। वो पानी में अपना जहर घोल रहा है और नंद बाबा वो बहुत ही खतरनाक व्यतीत होता है। अरे ये तो चिंता का विषय है। सभी को सूचित किया जाए कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलता तब तक यमुना नदी के तट पर कोई भी न जाए। जो हुक्म मेरे दाता। सुनो 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 सुनो, सभी को आगाह किया जाता है। यमुना नदी में एक विशालकाय सर्प आ गया है। कोई भी यमुना के तट पर या यमुना में ना जाए। सुनो सुनो सुनो, यमुना नदी में एक विशालकाय काला नाग आ गया है। कोई भी यमुना के तट पर ना जाए। कृष्ण जब ये सुनते हैं तो वे मन ही मन कालिया नाग से गांव वासियों को छुटकारा दिलाने का प्रण करते हैं और जानबूझकर अपने मित्रों से कहते हैं, अरे अरे चलो आज यमुना नदी के किनारे खेलते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो बड़ा मजा आएगा। अरे क्या तुम्हें सूचना नहीं मिली कि नदी में एक विशालकाय जीव आया है? उसने अपने जहर से पूरी यमुना नदी का जल काला कर दिया है। वहां जाना खतरे से खाली नहीं है कृष्णा। अरे बलराम भैया, आप तो यूं ही चिंता करते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं सुना। चलिए ना, चलकर हम सभी मजे से खेलते हैं। अरे कृष्णा, तुम भी बड़े हठी हो, चलो। अरे जोर से मारो। ये देखो, ये फेंकी मैंने गेंद। अरे अरे कृष्णा, तुमने ये क्या किया? गेंद को तुमने पानी में फेंक दिया। अरे कृष्णा, अब वो गेंद कौन लाएगा? तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अभी गया और अभी आया। नहीं नहीं कृष्णा, नंद बाबा ने मना किया है कि यमुना के तट पर कोई भी नहीं जाएगा। आप अकारण ही चिंता करते हैं बलराम भैया। यमुना का पानी देखो कितना साफ है, कुछ भी नहीं है। मैं अभी जाके मेरी गेंद लेकर आता हूँ। कृष्ण को बस इसी मौके की तलाश थी। वे झट से यमुना में कूद जाते हैं और कालिया सर्प से मिलते हैं। तो तुम आए हो यहाँ? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जानता हूँ, तुम कालिया नाग हो। मैं तुम्हें अभी आदेश देता हूँ कि तुम ये नदी छोड़कर तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम इतने से बालक और मुझे जाने के लिए कह रहे हो? जानते नहीं मेरा विष कितना खतरनाक है और मुझ में कितनी शक्ति है। मैं तुम्हें इसी नदी में खत्म कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरता, चाहे तो मुकाबला कर लो। मुझे ललकार रहे हो? मुझसे मुकाबला करोगे तो आ जाओ। और कालिया सर्प और श्री कृष्णा के बीच जमकर मुकाबला होता है। हे प्रभु, मुझे माफ करना। मैं मेरी शक्ति में अंधा हो गया था। मुझे माफ करिए, मुझे मारिए मत। बिल्कुल, अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सिर्फ एक
शर्त पर? प्रभु, मैं आपकी सारी शर्तें मान लूंगा और आपसे वादा करता हूँ मैं ये नदी छोड़कर चला जाऊंगा। तो मेरी शर्त ये है कि कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करोगे। चलो वादा करो, किसी भी जीव जंतुओं को अकारण तंग या परेशान नहीं करोगे। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है प्रभु, मुझे कृपया करके जाने दे प्रभु। ठीक है, तथास्तु, तुम जा सकते हो। और तभी गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं और कृष्णा की जय जयकार करने लगते हैं। कृष्णा 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 कृष्णा। इतनी सुंदर प्रस्तुति देख मुझे एक बात तो समझ में आई कि अत्यंत घमंड पतन का कारण होता है, इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। शाबाश शाबाश। आपको पता है मेरे नाना जी बहुत अच्छे भजन सुनाते हैं और मैं भी उनके पास बैठकर रोज भजन सुनता हूँ। उनके भजन सुन के मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। हाँ, मुझे भी भजन बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कौन सुनाएगा? अरे क्यों चिंता करती हो, हमारे अदिति सिल्वर बेल्स के बच्चे हैं ना। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष छोटे छोटे बच्चों द्वारा मन को मोहने वाले भजन। कि हमें इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो सारे ब्रजवासी उनकी बात मानकर उनके पीछे पीछे चलते हैं और क्या गाते गाते चलते हैं? छोटी छोटी कलियां, छोटे छोटे बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, काली अंधियारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। प्रिया मैम, कृष्ण भगवान के बारे में कुछ और बताइए, जैसे कि उन्होंने गोकुल में और क्या क्या लीलाएं करी थी। हाँ, तो आप सबको पता है कृष्ण भगवान ने बचपन में कौन सा पर्वत उठाया था? हाँ, तो ये उस समय की बात है जब कृष्ण भगवान ने इंद्र का अभिमान तोड़ा था और सारे ब्रजवासियों को कहा था कि हमें इंद्र की पूजा न करके गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो सारे ब्रजवासी उनकी बात मानकर उनके पीछे पीछे चलते हैं और क्या गाते गाते चलते हैं? छोटी छोटी कलियां, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी कलियां, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, अरे
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे छोटो सो मेरो, अरे बीच में मेरो मदन गोपाल, अरे माखन खावे मेरो मदन गोपाल, अरे बंशी बजावे मेरो मदन गोपाल, अरे रास रचावे मेरो मदन गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो कार्यक्रम का समापन यही हो रहा है और नंदोत्सव की कुछ पंक्तियां हम चाहते हैं आप सब भी हमारे साथ में दोहराएं। हरि नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद की आनंद भयो जय कन्हैया, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय हो नंद लाल की, जय गदना लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। सुंदर भजन सुनकर मधुर श्री कृष्ण की भक्ति और मेरे मन को बहुत ही शांति मिली। ऐसा ही कुछ मैं अपने अतिथि से भी आशा करती हूँ। अब हम सब बच्चे आपसे उत्सुक हैं सुनने के लिए कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आपसे निवेदन है कि आप कृपया स्टेज पर पधारिए। I would like to congratulate Aditi ma'am and the whole team at Silverbell, Aditi Silverbell School. It was a great show and I was so surprised to see these kids so confident talking on the mic and so confidently, curating the program. It is a moment of like great pride to be here amongst all these talented people, and I'm grateful to you for calling me, all the parents for bearing with me and bearing with the children's little naughtiness that they were doing on the stage, but they were so confident. And मैं आप सब लोगों ने वही कहनी चाहूँ कि आप लोग बहुत लकी हो। आ स्कूल बहुत बहुत अच्छी स्कूल है और आज मारो पहली बार प्राइवेट स्कूल रे मैंने फंक्शन रही हो। जनरली मैं गवर्नमेंट स्कूल रे फंक्शंस अटेंड करूँ और मैंने बहुत अच्छा लगा कम। एंड थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। कंग्रेचुलेशंस।